Good morning student. In the previous video we have studied annuity. There are two types of annuity, immediate annuity and annuity due. Now today we are going to study remaining example in exercise 2.2. See the example number 9. Find the rate of interest compounded annually if an annuity immediate at rupees 20,000 per year amounts to rupees 2,60,000 in 3 years. So see, here we have to find rate of interest, that means R, compounded annually. तो यहाँ पे दिया है annually compounded है. If an annuity immediate, that means this is the example of immediate annuity at rupees 20,000, that means C is given, C equal to rupees 20,000 per year amounts to rupees 2,60,000, that means A, accumulated value A is given 2,60,000 in 3 years, that means N is given, N equal to 3 years. So here we use formula of A equal to C upon I into bracket 1 plus I raised to N minus 1. Now by substituting these values in this formula, so 2,60,000 which is equal to C 20,000 upon I 1 प्लस I. अब यहाँ पे R फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें I भी बतानी है, तो यहाँ पे I की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. सो 1 प्लस आई एज इट इज़ ब्रैकेट क्यूब माइनस 1. अब यहाँ पे I के टर्म्स जो दिए हैं, एक डिनोमिनेटर में है एक न्यूमरेटर में, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे और I की वैल्यू में फाइंड आउट करना है. I की वैल्यू मिलेगी तब आपको R की वैल्यू इजीली मिल जाएगी. सो ये जो नंबर ऐसे इधर ट्रांसफ़र करेंगे जो कि न्यूमरेटर में है, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2,60,000 अपॉन 20,000 विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे नंबर नहीं है सो 1 अपॉन आई इंटू ब्रैकेट. अब यहाँ पे देखो 1 प्लस आई होल क्यूब है, सो हियर वी यूज़ फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब. So we know that formula of a plus b whole cube which is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. ठीक है, तो ये एक्सपेंशन यूज़ करेंगे यहाँ पे. सो 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई, तो 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 3 इंटू आई प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर plus b cube. b cube means I cube minus 1 as it is. So here 4 0 get cancelled, 2 से इसको डिवाइड करोगे so 13 which is equal to 1 upon I into bracket 1 cube is 1, so 1 plus 1 minus 1 get कैंसिल. सो क्या बचा देखो, उसे सीक्वेंस में लिखेंगे आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर प्लस 3i. अब इसे ऑब्जर्व करोगे हर एक टर्म में आई की टर्म है, तो उस आई को कॉमन निकालो और आई की टर्म कैंसिल हो जाएगी. सो 13 इक्वल टू आई अपॉन आई. अब इसमें से आई कॉमन निकालेंगे तो आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3. सो हियर आई गेट कैंसल्ड. नाउ अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3, लेकिन कांस्टेंट यहाँ पे भी और इधर भी है, तो कांस्टेंट को एक साइड में करेंगे क्योंकि RHS 0 चाहिए. सो 13 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, RHS आपको 0 मिलेगी. सो आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3 माइनस 13 इक्वल टू 0. सो आई स्क्वायर प्लस 3i माइनस 10 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. अब आपको क्या करना है, तो माइनस 10 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनकी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए प्लस 3. सो फाइंड 2. सो माइनस 2 के दो फैक्टर्स मिलेंगे 5 2. अब यहाँ पे देखो एक निगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो 5 पॉजिटिव आएगा, 2 निगेटिव आएगा.
तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -10, दोनों का सब्सट्रैक्शन +3. सो आई स्क्वायर प्लस 5i minus 2i minus 10 equal to 0. So I into bracket I plus 5 minus 2 into bracket I plus 5 equal to 0. That means here we get I plus 5 equal to 0 or I minus 2 equal to 0. So I equal to minus 5 or I equal to 2. अब I है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो कभी निगेटिव नहीं आएगा. सो I इज़ नॉट इक्वल टू -5, I इक्वल टू 2. सो हियर I इक्वल टू R upon 100 इक्वल टू 2. I formula of I which is equal to R upon 100 which is equal to 2. Therefore R equal to 2 into 100. So R equal to 200 percentage per annum. So here we find rate of interest. Therefore rate of interest are equal to 200% per annum. Now see the example number 10. Find the number of years for which an annuity of rupees 500 is paid at the end of every year if the accumulated amount works out to be rupees 1655 when interest is compounded annually at 10% per annum. So here we have to find number of years, that means n, for which annuity is rupees 500, that means C equal to rupees 500. If the accumulated amount, that means A is given 1655. Our rate of interest R is given 10% per annum. So here we find I equal to R upon 100. So 10 upon 100 which is equal to 0.1. Now formula of accumulated value. So A equal to C upon I, 1 plus I raised to n minus 1. Now by substituting values, A equal to 1655, C equal to 500 upon I 0.1. अब यहाँ पे n फाइंड आउट करना है, बाकी सभी वैल्यूज़ दिए. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे. अब ये डिनोमिनेटर में 0.1 है, तो अगर हम पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं तो न्यूमरेटर में एक 0 बढ़ जाएगा. सो 1655 इक्वल टू 500 का 5000 हो जाएगा अपॉन 1 रहेगा. तो 1 आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. 1 प्लस 0.1 1.1 रेस्ट टू n माइनस 1. अब इस 5000 को इधर ट्रांसफ़र करोगे, डिवाइड हो जाएगा. सो 1655 अपॉन 5000 इक्वल टू 1.1 रेस्ट टू n माइनस 1. तो n की वैल्यू तो पता नहीं है, सो ये एज इट इज़ रहेगा. अब 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको 1000 मिलेगा. यहाँ पे 5 3 ज़र 15, 5 3 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, 331. सो 331 अपॉन 1000, डेट मीन्स 3 0 है तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा. 0.331 विच इज़ इक्वल टू 1.1 रेस्ट टू n माइनस 1. माइनस 1 को इधर ट्रांसफ़र करो. सो 0.331 प्लस 1 इक्वल टू 1.1 रेस्ट टू n. दोनों की एडिशन, अब ये 1 है मतलब यहाँ पे पॉइंट बाद में आएगा, तो दोनों की एडिशन करोगे तो ये बन जाएगा 1.331 विच इज़ इक्वल टू 1.1 रेस्ट टू n. अब n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन n यहाँ पे जो है वो इंडेक्स में है, पावर में है. तो हमें n अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 1.1 है और यहाँ पे 1.331 है, तो ये नंबर हमें चेक करना है कि 1.1 के रेंज में है क्या. सो अभी जस्ट हमने देखा था कि 1.1 का क्यूब आता है 1.331. सो हियर वी राइट 1.1 क्यूब which is equal to 1.1 raised to n. So by using laws of indices, if base are same, then we can write here powers are same. Therefore n equal to 3. So here we find the number of years equal to 3.
example number 11. Find the accumulated value of annuity due. Now see, this is the example of annuity due. एन्यूटी ड्यू में हमेशा याद रखो, या तो एग्जाम्पल में एन्यूटी ड्यू दिया होगा या फिर आपको बिगिनिंग वर्ड दिया होगा. ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एन्यूटी ड्यू वर्ड दिया है, दैट मीन्स आपको एन्यूटी ड्यू के फॉर्मूले यूज करने हैं. Of rupees 1000, here C is given, C is rupees 1000 for 3 years, N is given, N equal to 3000, 10% per annum compounded, R is given 10%, so I equal to 10 upon 100, which is equal to 0.1. Now we know that the formula of accumulated value of annuity due is equal to A dash equal to C into 1 plus I upon I bracket 1 plus I raised to N minus 1. Now substituting all this value in this formula, we get here 1000 into 1 plus 0.1 upon 0.1, 1 plus 0.1 cube minus 1. Now by adding these two numbers, so here we get 1000 1.1 upon 0.1, here 1.1 cube minus 1. ठीक है, अब या तो इस पॉइंट को शिफ्ट करके इधर 0 बढ़ा सकते हो, या फिर बेस्ट वे यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो दोनों पॉइंट शिफ्ट कर दो, तो आपको मिल जाएगा 1000 इंटू 11 अपॉन 1. देखो दोनों का पॉइंट मैंने आगे शिफ्ट कर दिया. यहाँ पे पता है हमें 1.1 का क्यूब 1331 इज गिवन इन एग्जाम्पल minus 1. Now multiplication of these two numbers 11,000 and subtraction of these two numbers 0.331. अब यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो हम इन 0 को कैंसिल करके इसका पॉइंट निकाल देंगे, सो इट बिकम्स 331. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो हमें मिल जाएगा, देखो 11 1 सा 1, 11 3 सा 33, 33 प्लस 1 4, 34, 11 3 सा 33, 33 plus 3 36. So here we get A dash equal to 36. That means accumulated value which is equal to rupees 3641. See the example number 13. It's very easy exercise, you can easily solve it. Find the present value of an annuity due. Again here you have to give annuity due and we have to find present value. That means here we use formula of P dash. Now see, rupees 600 to be paid, that means C is given quarterly, so this word is also important, at 32% per annum. So here R is given per annum, compounded quarterly. That means here we have to convert this per annum into per quarter. Given value 1.0.8 raised to minus 4, which is equal to, so P dash find out करना है, C rupees 600, R 32% per annum, so here we convert per annum into per quarter, 32 by 4 percentage per quarter. By dividing this number, here we get 8% per quarter. So R is, here we find value of R. So next I, R upon 100, so 8 upon 100 is 0.08, N equal to 1 year, so 1 into 4, 4 quarter. Now formula of P dash, C into 1 plus I upon I into this formula. Now by substituting all these values, so 600 1 plus I upon I, 1 minus 1 plus I raised to minus 4. Again by simplifying this, 1 plus 0.8, that means 1.08 upon 0.08, 1 minus एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स, 1 1 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट का रेस टू -4 है, तो पहले दोनों की एडिशन करेंगे, तो 1.08 का रेस टू -4. अब यहाँ पे फिर से पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 600 इंटू 108 अपॉन 8, और यहाँ पे 1 माइनस 1.08 रेस टू -4 की वैल्यू आपको दी है 0.7350.
अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रह गया 28, 4 7 are 28। अब इस 2 से इधर डिवाइड करोगे 300, सो हियर वी गेट 300 इंटू 27। अब ब्रैकेट में 1 माइनस दिस वैल्यू। अब ये वैल्यू इससे पहले के एग्जांपल में क्या था, 1 पॉइंट, यहाँ पे देखो 1.331 माइनस 1 होगा, तो 1 माइनस 1 डायरेक्ट हम 0.331 लिखते थे। अब यहाँ पे 1 माइनस दिस वैल्यू, तो आपको ये सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे साइड में किया है, 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.000 लिखना पड़ेगा जितने भी डिजिट्स होंगे यहाँ पे, और बाद में पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 0 पॉइंट, वो नंबर लिखो और बाद में दोनों का सब्सट्रैक्शन करो तो आपको ये नंबर मिल जाएगा 0.2650। तो लास्ट का 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स, वी गेट हियर 8100 इंटू 0.265, लास्ट का 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब फिर से पॉइंट को शिफ्ट करना है, 2 ही 0 है तो 81 इंटू 26.5 लिख सकते हो। बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, वी गेट हियर 2146.5। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड आउट किया, आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक करो मेरा आंसर करेक्ट है क्या। सो हियर वी गेट द प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ₹2146.5। Now see the example number 14. An annuity immediate is to be paid for some years at 12% per annum. The present value of annuity is ₹10,000 and the accumulated value is ₹20,000. Find the amount of each annuity payment. देखो P दिया है, A दिया है और आपको annuity के payments find out करना है, that means C find out करना है। तो यहाँ पे आपको relation दिखाई दे रहा है, present value and accumulated value. So first we write given part. P is given, A is given, R is given. So here we find value of I. Now the relation between A, P and C. So 1 upon P minus 1 upon A equal to I upon C. Now substitute the values. So 1 upon 10,000 minus 1 upon 20,000 equal to I is 0.12 upon C. C find out करना है। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करते, सब्सट्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तभी आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 20,000 है, मतलब इधर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 अपॉन 20,000 माइनस 1 अपॉन 20,000 इक्वल टू 0.12 अपॉन सी। ना तो सब्सट्रैक्शन करोगे 2 माइनस 1, 1 अपॉन 20,000 इक्वल टू 0.12 अपॉन सी। सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि डिनोमिनेटर में है, तो सी को इधर ट्रांसफ़र करो, 20,000 को इधर ट्रांसफ़र करो। सो सी इंटू 1 सी मिल जाएगा, 0.12 इंटू 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो अगर हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो इसमें से 2 0 कम हो जाएंगे। सो 200, ठीक है। नाउ 12 इंटू 2 24। So here we get C equal to 2400. So the amount of each annuity payment equal to ₹2,400. Now the last question of this exercise and of this chapter. A person sets up a sinking fund in order to have ₹1 lakh after 10 years. What amount should be deposited biannually in the account that pays him 5% per annum compounded semi-annually? So see, this word is semi-annually, that means half yearly, and biannually that means also half yearly. तो यहाँ पे हाफ ईयरली फाइंड आउट करना है तो हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब एक पर्सन है जिसे फंड बनाना है ₹1 लाख का आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद उसको 1 लाख जमा करना है, तो उसको हाफ ईयरली पेमेंट इंस्टॉलमेंट भरना है 5% पर एनम से। तो उसको कितना
उसको कितना इंस्टॉलमेंट भरना है, मतलब सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. सो हियर एक्यूमुलेटेड वैल्यू ए इज़ गिवन ₹1 लाख, सी फाइंड आउट करना है. पीरियड दिया है 10 ईयर्स का, तो हाफ ईयरली है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 सेमी एनुअली हो जाएगा, दैट मीन्स हाफ ईयरली. तो आर 5% पर एनम दिया है, हाफ ईयरली फाइंड आउट करना है तो 5/2 मतलब ये बन जाएगा 2.5% पर हाफ ईयर. तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करो, R/100, सो 2.5/100. तो देखो 2 0 है तो 0.2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे डिजिट नहीं है तो 0 आ जाएगा उसे, दैट मीन्स 0.025 आ गया. अब ए दिया है, सो एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो ए इक्वल टू C/I 1 + I⁻n - 1. सभी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 लाख C/0.025 एंड 1 प्लस दिस n है 20 - 1. अब इसे सिंप्लीफाई करो. अब इस अमाउंट को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, सो बन जाएगा 1 लाख इंटू 0.025 इक्वल टू C इंटू ब्रैकेट 1.025 रेस टू 20 - 1. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो ये 3 0 कट कर देंगे, तो यहाँ पे 100 इंटू 25 बन जाएगा इक्वल टू C इंटू ब्रैकेट. अब इसकी वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 1.025 रेस टू 20 विच इज़ इक्वल टू 1.675. सो 1.675 - 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2500 C इंटू सब्सट्रैक्शन 0.675. अब ये मल्टीप्लाई है, उसे इधर ट्रांसफ़र करो, C की वैल्यू मिल जाएगी. सो 2500 अपॉन 0.675 इक्वल टू C. अब पॉइंट को निकाल दो तो यहाँ पे 3 0 बढ़ जाएंगे. सो 1 2 3, तो ये बन जाएगा 25 लाख अपॉन 675 इक्वल टू C. तो 25 से डिवाइड करके देखो और बाद में फुल डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा 3703.7. ठीक है, आप सॉल्व करके देखो इससे. तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, द अमाउंट ऑफ पेमेंट फॉर सेमी एनुअल विच इज़ इक्वल टू ₹3703.7. तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करना है. यहाँ पे आपका सेकेंड चैप्टर भी ख़त्म होता है. कुछ डाउट है तो आप पर्सनल ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं मैसेज करके. थैंक यू.